we need to talk about how to think, because no one has ever taught us how to think. We don't have any manual for how to think, so it's not even taught in school. Before that, we need to understand the difference between brain and mind. So brain is like the physical organ. It's like hardware of a computer. We can see the brain, we can touch the brain, it can be measured, it can be weighted, we can weigh the brain, how many grams it is. But mind is a subtle organ. You cannot see mind from your eye. You can experience mind, you can experience functions of mind, but you cannot see or measure mind. And it's like a software that we use but we can't see. Like in computer software, we can see but we can't touch the software like that. So it's basically, if we want to define, then it is thought generating faculty of human beings. Like the faculty, pinpoint faculty, जो thoughts create करती है is mind exactly. And it's a very complex machinery. So more complexities we need to understand, because thoughts वहीं से पैदा होती है, तो उसको understand करना थोड़ा सा जरूरी है. So I being a doctor, I feel it is very important to understand the logic behind everything. Once we know the logic, we automatically find the desire to do that. इच्छा होगी तो इच्छा शक्ति भी आएगी, मेरा ऐसा मानना. So it's exactly like the way we see here computer hardware, then there is software, and then there is a user. Similarly, we human beings is made of three things. Like one is our body, one is our mind, and then one is our soul. The soul is that entity which we can take it as a user, the energy within us, or the person within us, or we are the soul actually who chooses. We are the ones who choose, right? So I'm not the body, and I'm not only my mind. I'm a combination, and so these are the three faculty we need to understand, that there is one user within us that chooses everything. This is very important. So and thought power is the greatest power we have. Matlab, we are blessed with this power. Whether we know how to use it or we don't know how to use it is another thing. But it is the least understood energy resource of the universe. So many of people say कि सोचने से क्या होता है, ऐसा भी क्या होता है. So this is a just very simplified diagram, extremely simplified, that how we think leads to how we feel, and that is what we do. This is the simplest thing, but we will discuss in detail. Thought never comes alone. Thought always comes in a team. It's a team, and the full form of team is thought. When there is a thought, there is a corresponding emotion associated with the thought. जिस तरह का thought होगा वैसा emotion होगा, वैसा ही हमारा एक पर्टिकुलर तरीके का जो थॉट्स होता है उसी तरीके का हमारा एटीट्यूड होता है, एंड सिमिलर मेमोरीज भी फॉर्म. अगर हमने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए तो उसी तरह के हमारे मेमोरीज बन जाते हैं, एटीट्यूड बन जाते हैं. सो नाउ देयर इज अ पॉजिटिव थीम एंड देयर इज अ नेगेटिव थीम. उसका अब हम इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर कोई इंसान हर वक्त पॉजिटिव रहता है या पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, तो वी कैन से दैट इट्स अ पॉजिटिव थीम. एंड पॉजिटिव का मतलब है कि थॉट्स हमेशा कम, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा कम रहती है. इट्स नॉट क्लाउडिंग ऑफ थॉट्स, इट्स ऑलवेज लेस थॉट्स, slow thoughts. The person will be at ease, happy, and he will always have a high energy status. That person will feel high energy. Whereas a person who has a negative feeling will have more thoughts. There can be mental clouding or mental fog. The thoughts will be faster, and there will be dis-ease. The person will not be comfortable. Negative, with so much negativity, we cannot be comfortable. We can be sad, and also we will feel a lack of energy. Sometimes I feel, why do we say the word positive and negative? And the word itself explains it all. Positive means something is adding, and negative means something is minusing, something is subtracting. So what is it that is adding, being added or being subtracted? It is the energy. So whatever is positive, if you want to actually check if it is positive or not, then you can test by your energy levels. If something gives you a better energy, higher energy, that means it is a positive thing. If something gives you negative energy, less energy, so it's a negative thing. So coming so a bit more in detail, जब भी हम पॉजिटिव टीम में रहते हैं तो नेचुरल पेन किलर्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ मॉर्फिन. अफीम जो मॉर्फिन को ओपियम बोलते हैं ना, हाँ, ओपियम जो अफीम होता है हिंदी में, बहुत लोग उसको पेन किलर के लिए भी यूज करते हैं. एक तरह का नशा होता है. अगर हम अच्छे पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरल एंडोर्फिन रिलीज करती है. तो जो पॉजिटिव रहते हैं ना लोग, उनको ज्यादा दर्द की तकलीफें नहीं रहती, उनको हर वक्त बॉडी में पेन नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरल पेन किलर रिलीज होता है. पॉजिटिविटी से मेलाटोनिन रिलीज होता है. मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है जो आपको
कम घंटों में भी एक बेटर स्लीप देता है. मतलब अगर आप इट विल इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ स्लीप. So whenever you wake up fresh, and it releases DHEA, which is an anti-aging hormone. तो जो पॉजिटिव रहते हैं वो लोग दे लिव लॉन्गर, एंड नॉट जस्ट दे लिव लॉन्गर, दे लुक यंगर, दे रेडिएट, देयर स्किन इज ऑलवेज ब्राइटर, एंड उनके एनर्जी लेवल्स हमेशा अच्छे रहते हैं, क्योंकि इट्स ऑल्सो हार्मोनल. इट्स नॉट जस्ट के सिर्फ थॉट लेवल पे हो रहा है, ये सब कुछ फिजिकल हो जाता है. वैसे नेगेटिव रहने वाले लोग, उनके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है. कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन. कॉर्टिसोल इज रिस्पांसिबल फॉर सो मेनी डिजीजेस. दैट्स अनदर टॉपिक इन इटसेल्फ. But a few more negative hormones, adrenaline, noradrenaline, histamine. Histamine is responsible for allergies. तो बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स. नेगेटिव टीम हमेशा अकेले नहीं आती. इट आल्सो ब्रिंग्स अलोंग दीज हार्मोन्स. सो नाउ कमिंग ऑन टू बॉडीज हिडन मैनेजर, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस एक्चुअली जो ये रेड कलर का दिखा रखा है, ये ब्रेन के अंदर, ये जो है यहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस की सीट है. और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करता है. जब हम सो रहे होते हैं, हमारी ब्रीदिंग, हमारा डाइजेशन, हम हमारी बॉडी के जितने भी अनकॉन्शियस वर्क है वो बैकग्राउंड में हाइपोथैलेमस मेंटेन कर रहा होता है. हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, सब कुछ. बट थॉट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें हाइपोथैलेमस की क्या जरूरत है. ओके यसीन, यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन. Yes, doctor. So previous slide में एक हार्मोन आपने बताया, noradrenaline. Can you talk a little more about this? एक्चुअली एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स है. ये हमारी बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब भी हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी मोड की जरूरत होती है हमारी बॉडी को. whenever our body feels that there is a threat in external situation and we need to prepare for that emergency. तो आप खुद एक बार इमेजिन करो कि जैसे अभी हम सब लोग कोरोना के ड्यूरेशन में चल रहे हैं. तो वी ऑल, द एंटायर वर्ल्ड इज इन इमरजेंसी मोड. तो इस वक्त हम सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, मतलब सारे रेगुलर फंक्शंस को बंद करके, each one of us is just surviving on bare minimum to be able to handle the upcoming emergency. Right? So then exactly that happens in our body. Exactly that happens in our body. Whenever we think too much negative, then our body perceives it as a threat. The negative body senses it as a threat, that कोई environment में threat है, क्योंकि brain को समझ में नहीं आता imaginary threat या real threat. Suppose आपके सामने कोई danger है, या आप आंखें बंद करके imagine कर रहे हो कि यार ये danger आ सकता है, just totally imaginary. So brain will not perceive कि ये imaginary danger है तो मुझे वो वाले हार्मोन की जरूरत नहीं. ब्रेन क्या करता है, ये इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज कर देता है, assuming that you need to be faster, you need to be stronger, and your blood जो है आपका ब्लड थिक हो जाता है आपकी बॉडी में, जो मतलब बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट के लिए आपको प्रिपेयर कर देती है आपकी बॉडी. कि आपको एक सेकंड के अंदर आपको भागना है, पड़े तो आप भाग सको, और आपको लड़ना पड़े तो आप लड़ सको. लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब हमारी बॉडी हमको इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो फिर रेगुलर फंक्शंस का क्या हुआ. रेगुलर फंक्शंस आर बीइंग शट डाउन, रेगुलर डाइजेशन इज बीइंग शट डाउन, रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन इज बीइंग शट डाउन. तो जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उनकी बॉडी हर वक्त इमरजेंसी मोड में चल रही है, तो उनकी बॉडी में डिजीजेस पैदा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी नॉर्मली जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो नहीं कर रही है, ठीक से सो नहीं रहे हैं, ठीक से बॉडी के फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज होने लगती है. So here just we understand hypothalamus is the point जहाँ पे साइकोलॉजी फिजियोलॉजी में कन्वर्ट होता है. मतलब कि हमने कुछ सोचा और वो एक थॉट हमारी बॉडी में एक केमिकल में ट्रांसलेट हो जाता है. वो कैसे होता है, उन केमिकल्स को न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं. तो थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो हमारे जो ब्रेन है उसमें 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं. ये जो सारे दिख रहे हैं ये सब न्यूरॉन्स है, और ये सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं. ये जो न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, ये जो जंक्शन है ये ऐसा दिखता है. दिस जंक्शन इज कॉल्ड साइनैप्स, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो जंक्शन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू केमिकल विच इज नोन एज न्यूरोपेप्टाइड. अब क्या होता है हमारी बॉडी में, हमने जो भी थॉट क्रिएट किया, उस थॉट के जैसा एक न्यूरोपेप्टाइड इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाता है. तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वो मैसेज हमारी पूरी बॉडी के एक एक सेल तक इमीडिएटली कैसे पहुंचता है. आप खुद सोचो, अगर कभी हमें खतरे की घंटी बजती है, कोई कॉल आ गया और अचानक से कोई बैड न्यूज सुनी, विद इन अ सेकंड हमारी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है. विद इन अ सेकंड हम एकदम घबरा के गिर जाते हैं, किसी को शॉक आ जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी को एकदम नर्वस डायरिया हो जाता है. ये कैसे होता है विद इन अ सेकंड.
ये न्यूरोपेप्टाइड्स के थ्रू होता है। तो हम अगर पूरे दिन जिस भी तरीके के थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो थॉट्स हमारी बॉडी की पूरे बॉडी में जा रहा है इन केमिकल्स के थ्रू, जिसको न्यूरोपेप्टाइड्स है। And there are more than 100 types of neuropeptides in brain, produced in brain, and they go into the entire body. अब ये हाइपोथैलेमस से पूरी बॉडी के एक एक सेल तक मैसेज न्यूरोपेप्टाइड्स लेके जाते हैं, एंड इन लेस देन 1 सेकेंड वो पूरे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाता है। और हर सेल, लाइक टोटल देयर आर 80 ट्रिलियन सेल्स इन बॉडी, व्हिच इज टू मच, एंड उस हर एक सेल के अंदर लैक्स ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सोचो एक सेकंड में 1 लाख रिएक्शन हर सेल में हो रहे हैं, 80 ट्रिलियन सेल्स है, तो एक एक केमिकल का कितना इफेक्ट होता होगा। और वो सेल उस केमिकल को रिफ्यूज नहीं कर सकता है। जैसे हाइपोथैलेमस ने कोई मैसेंजर भेजा, केमिकल भेजा न्यूरोपेप्टाइड, सेल कैन नॉट रिफ्यूज कि मैं इस नेगेटिव हार्मोन को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, और जो सेल की रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली वो जो न्यूरोपेप्टाइड है उसको इन्फ्लुएंस कर देता है। दैट इज टू मच ऑफ अ साइंस आई थिंक, बट सेल मतलब our body cells can't escape the effects of our thoughts. ये मेरा whole idea था. So enough of science. मतलब this I hope it's clear by now. So I'll go ahead. So by keeping a watch on our thoughts, we can convert tension into attention. So basically हमें अपने थॉट्स को वॉच करना है। अब कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। नाउ ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में, अब हम माइंड के ऊपर जाते हैं। थिंकिंग फैकल्टी ऑफ ब्रेन। माइंड क्या करता है? पूरे दिन हर वक्त हम सोचते रहते हैं। क्या डज एनीबडी हैज आइडिया हम एक दिन में कितने थॉट्स क्रिएट करते होंगे? लाइक हमारा माइंड कितने थॉट्स क्रिएट करता है? Around 70,000. या राइट, एग्जैक्टली बिलियंस, 60 to 70,000, 80,000 भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कौन कम सोच रहा है, ज्यादा सोच रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इवन देयर आर पीपल जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो 70 to 80,000 भी कर सकते हैं। अच्छा, और ज्यादातर लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या करते हैं? मेडिटेशन कर लो, प्राणायाम कर लो। लेकिन आप मेडिटेशन कितने देर कर लोगे? आप 1 घंटा कर लोगे। आप प्राणायाम कितनी देर कर लोगे? आधा घंटा, 1 घंटा कर लोगे, लिमिटेड टाइम कर लोगे। लेकिन पूरे दिन तो हम सोचते रहते हैं ना। तो जब तक हम ये भी नहीं सीखेंगे साथ में दैट हाउ टू थिंक इन अ राइट मैनर, तब तक वो थॉट्स हमें इफेक्ट करते ही रहेगा। सो इसीलिए थॉट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम पूरे दिन सोच रहे हैं, 60 से 70 हजार थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अच्छा, how many of you believe that we create thoughts? Yes, some we have a habit of saying कि thoughts आ गए, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। So do you believe that we create thoughts or thoughts are passive? It is active thing or it is passive thing? Combination of both. Combination of both, yes. मतलब we create thoughts based on our environment, Right. we get cues from the environment, but the creation of thoughts is there within our mind, and that we always have a choice. But हम उस चॉइस के लिए हैबिचुअल नहीं होते हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, तो हमें पता नहीं चलता है। सो थॉट्स बिकम थिंग्स, ये इट्स एक्चुअली वेरी डीप साइंस, इट्स काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओनली, कि हम जो सोचते हैं वैसा ही हम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग इस चीज में मानते नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि जिंदगी में जो भी हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है। बट अगर आप बहुत डिटेल में जाए तो हम अपने थॉट्स को इतना पावरफुल कर सकते हैं कि हम अपनी खुद की डेस्टिनी शेप कर सकते हैं। सो ये हमने देख लिया। हम इन थॉट्स को मॉनिटर कैसे करेंगे? 60,000 थॉट्स को तो हम देख नहीं सकते ना, पूरे दिन हम वॉच नहीं कर सकते कि मैंने अभी क्या सोचा था, अब क्या सोचा था। हाँ, ठीक है ना, कीप अ वॉच। So the only way to monitor our thoughts is to monitor our feelings. हम अपने फीलिंग्स का हर वक्त ध्यान रख सकते हैं। और अगर हमको पूरे दिन में कभी भी लगता है कि हम लो फील कर रहे हैं, that should be the point जहाँ पे हमें रेट्रोग्रेड रिफ्लेक्ट करना है कि अगर मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई नेगेटिव थॉट आया है जो मैंने क्रिएट किया है, वो नेगेटिव थॉट के सोर्स पे जाना है कि कहाँ से शुरू हुआ ये सारा नेगेटिव साइकिल, कहाँ से शुरू हुआ। वहां से फिर हम उस थॉट पे वर्क कर सकते हैं। हमारी फीलिंग से हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या सोचा। तो 2 तरह के फीलिंग्स होते हैं, गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स। इट्स वेरी सिंपल टू मॉनिटर। तो बैड फीलिंग्स जैसे कि हमें डिप्रेशन में फील हो सकता है, हमें गुस्सा आ सकता है, रिजेंटमेंट फील हो सकता है, गिल्ट फील हो सकता है। देयर आर सो मेनी मोर फीलिंग्स। एंड या फिर हम प्रॉब्लम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड है, या फिर हम बहुत ज्यादा डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं, वी फील दैट हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, विक्टिम जैसा फील कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन बी अ बैड फीलिंग। And good feelings, excitement, joy, ये तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। We all know what are good feelings, and when we think of solutions, we will feel good and we feel empowered. So and thoughts also create destiny. इसका एक पूरा proper cycle है, और ये बहुत इसको खोल के अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है। So let's see how thoughts create destiny.
it's a complete cycle. So सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है. अब इसका कोई एग्जांपल अगर हम लें तो सपोज हम किसी हमारा कोई नियर एंड डियर वन है जिसको हम कॉल करें और उसका फोन स्विच ऑफ. अब फोन स्विच ऑफ है तो अब हमारे दिमाग में थॉट आया कि हाय राम कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं है. मतलब आई एम सेइंग थॉट आया, बट आइडियली हमारा लैंग्वेज होना चाहिए. आवर लैंग्वेज शेप आवर फ्यूचर. कि मैंने थॉट क्रिएट किया, बिकॉज जब हम उसको ओन अप करेंगे तभी हम उसको चेंज करेंगे. जब हम बोलेंगे कि थॉट आया तो फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज विल अज्यूम कि इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. तो जब फोन किसी का स्विच ऑफ है और हमने हमारे दिमाग में पहला थॉट हमने क्रिएट किया कि वो कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ सब सेफ है ना, वो ठीक तो है ना, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, then immediately we'll start feeling bad, we'll start feeling nervous or we'll start having anxiety. अब इसी सिचुएशन में दूसरा इंसान हो सकता है कि वो पहले सोचे कि फोन ऑफ आ रहा है, हो सकता है कि बैटरी लो हो उसका फोन की, आजकल पूरे दिन बैटरी लो हो जाती है, लेट मी वेट फॉर एन आवर और लेट मी टॉक टू हिज वन ऑफ फ्रेंड्स, जिससे पता चल जाए कि भाई वो कहाँ पर है. तो जो नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा वो हो सकता है कि लो फील करे, और जिसने ये सोचा कि मे बी बैटरी ऑफ है तो दैट पर्सन माइट फील नॉर्मल. इसी तरीके से हम जो परसिस्टेंटली हम जो फील करते हैं बार बार, या जो सपोज किसी इंसान के बारे में या घर में किसी सिचुएशन के बारे में, फॉर एग्जांपल कोरोना के बारे में, बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना को लेके उसके न्यूज, हमारी जो थॉट है, जिस तरह की थॉट है उस तरह की हमारी फीलिंग आएगी. और जिस तरह की फीलिंग्स हम बार बार क्रिएट करते हैं उससे हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. सपोज कोविड है, कोविड पिछले 1 साल से चल रहा है. अब कोविड को लेके कई तरह के थॉट प्रोसेस हो सकते हैं और हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं. वन पर्सन माइट फील और थिंक कि हाँ it's a disaster and it has come and we are dealing with it the way we have to deal it and it will eventually go. लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में वो कर सकता हूँ. तो वो इंसान अपने टाइम को, वो इंसान उतना लो फील नहीं करेगा, वो अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करेगा. दूसरी तरफ अगर कोई इंसान है जो एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम नेगेटिविटी, एक्सट्रीम फियर के थॉट्स जनरेट कर रहा है, दैट पर्सन विल फील क्रिपल्ड. वो कुछ भी क्रिएटिव कर नहीं पाएगा, हर वक्त एक अजीब तरीके के स्ट्रेस और डिप्रेशन में रह सकता है, नेगेटिविटी में रह सकता है. तो उस तरह का आपका एटीट्यूड बन जाएगा. तो बहुत सारे लोग हैं जो कोविड को लेके एक्सट्रीम फियर वाले एटीट्यूड में, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रल एटीट्यूड में, बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड हुआ भी है, रिकवर भी किए हैं, एंड दे आर स्टिल डूइंग व्हाटएवर दे कैन. एंड देयर आर पीपल जिनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, बट दे हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी और स्ट्रेस और फियर, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. मतलब अगर आप बहुत ज्यादा देर तक स्ट्रेस में रहोगे तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकियाट्रिक इलनेसेस, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो मतलब कि लॉन्ग टर्म तक जब आप कोई तरीके का फीलिंग परसिस्टेंटली क्रिएट करते हो तो आपका उस तरीके का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. अब वो सिचुएशन उतनी बुरी नहीं भी होगी तो भी आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा. सेम हैपेंस विद अ पर्सन. अगर आपके घर में आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव जिसके बारे में आप बार बार कुछ नेगेटिव सोचते हो, आज वो इंसान अगर पॉजिटिव भी हो गया है या उसने अपनी गलती सुधार भी ली है, लेकिन अगर आपका उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप नेगेटिव थॉट्स ही क्रिएट करते हो. तो एटीट्यूड इज समथिंग दैट हैपेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जिस तरह का हमारा एटीट्यूड होता है उसी तरीके के हमारे एक्शन होते हैं. बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फियर से कोविड को लेके बहुत सारे लोगों में ओसीडी भी डेवलप हो गया है. फियर बहुत, हर वक्त ओसीडी, आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. वो इतना ज्यादा घबरा के, इतना ज्यादा डर के, हर वक्त बस सफाई करते रहना, हर वक्त हर चीज से घबराते रहना, बिल्कुल बाहर नहीं जाना, एक्सट्रीम फियर. और ऐसे लोग एक बार भी बाहर जाते हैं और वो एक बार में ही बीमार होते हैं. उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है फीवर से, फियर से. और जो एक्शन हम बार बार करेंगे वो हमारी हैबिट्स बन जाती है. जो हैबिट्स हम बार बार करते हैं उससे हमारी, मतलब कॉन्स्टिलेशन ऑफ हैबिट्स मेक आवर पर्सनालिटी, एंड what kind of personality we have decides our destiny. So a thought is not just a thought, it leads us to our destiny. It helps us shape our destiny as a person, as a human being. And एक बहुत important जो थॉट्स होती हैं, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं पूरे दिन, मैं तो पागल हूँ, मैं तो ये हूँ, अरे मैं तो बर्बाद हूँ, आई एम मोस्ट यूजलेस पर्सन आई हैव सीन, आई एम लेजी, आई एम डिसफंक्शनल, आई एम दिस, आई एम दैट. ये आई एम करके जो हम बोलते हैं ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस वर्ड्स है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ड्स है. ये हम जो भी इसके आगे बोलेंगे वो हमारी रियलिटी को शेप करेगा. आई एम तो, और साइंटिफिकली, और ये जो आई डोंट नो, अगर एफर्मेशंस के बारे में आप सब जानते हैं, एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस भी होती है, नेगेटिव एफर्मेशंस भी होती है. तो नेगेटिवली जो हम खुद को सेल्फ टॉक करते हैं, और हम पॉजिटिव एफर्मेशंस करके और उस साइकिल को ब्रेक भी कर सकते हैं. पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल होती है. जैसे, and why it happens, why the words create our world is because
ये जो चीजें हैं ये हमारे सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट करती है. किसी कैन एनीबडी से कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कितना ज्यादा पावरफुल है? I think it's like an iceberg. Like I think 5% is our conscious and 95% is our या subconscious. ऑलमोस्ट 90% बोल सकते हैं कि 90% पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से. ये जो आई एम अफर्मेशंस होती है ये डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस पे जाके इम्पैक्ट करती है. ये एक अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते, बट हाँ, प्लीज वॉच वट एवर यूर सेइंग आफ्टर आई एम, इट इज गोइंग टू शेप योर डेस्टिनी. नाउ हमने डिस्कस किया कि किसी ने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, किसी ने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, पर उसके पीछे भी तो कुछ होता है ना. थॉट तो एक समझ लीजिए हमारे माइंड फैक्ट्री का end product है. It's the byproduct of the mind factory. What is the raw material? Why do some people think negative and some people think positive? And by even when we want to think positive, we are not able to think positive. हम चाहते हुए भी हम क्यों नेगेटिव सोचने लगते हैं? What is the basis of thought? So, What is the raw material? ये उस फैक्ट्री में, माइंड की फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है जिसके बेस पे थॉट्स क्रिएट होते हैं? Dr. Kirti Prabhat here. Hi, hi. Hi. Yes, So I think that's based on the belief we have, the subconscious belief we have. You were right. Belief system is definitely one of the factors that affect the quality of our thoughts. And a few more. Anyone else? Rini, yes? yeah, so I think our thoughts are formed by our belief patterns, and our belief is formed by conditioning. Basically, our environment, the way we were brought up, what kind of people we listen to, that is a nurture. And another thing is a nature. For example, I have two kids. My first kid will be always crying. My second kid is always smiling. So certain people, they are wired to be more positive. Certain tend to be negative, but there are always, strengths and weaknesses. So basically, our thoughts are programmed in our subconscious, and it's mainly two things: nature, the personality we were born with, and nurture, how well we were raised by our environment. Yeah, right. Anyone else? I agree with all of you that thoughts, or let's say the way our thoughts come into our life is through experience and upbringing and the past life experience. Right? What we have observed, what we have heard everyone talk, how we have experienced life, emotions, relationship, everything. Yeah, so we have covered almost most important thing. So we have said all those things जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी कंडीशनिंग, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, हमारी वायरिंग, एनीथिंग दैट वी हैव अ कंट्रोल ऑन, कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे थॉट्स का क्वालिटी इंप्रूव हो. सो वन इज बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू चेंज. Anything, any action that we can take in our day-to-day life that directly affects our thoughts. Okay, I'll go ahead with the slide. Dr. Kirti, can I speak for a minute? Yes, please. Yeah. I think we can change it by acting the way we want. So the belief, thoughts, feeling, emotions, and our actions all are interlinked. So Yeah. we change our actions, we will change everything subconsciously over a period of time. Yes, definitely. By changing actions, we change our habits. By changing our habits, we change actually the entire cycle. We change our destiny. You're right. So thank you. Thank you all for being interactive. So basis of thoughts, the most important that we all missed is information. What information we take inside our mind all day, what we see, what we hear, what we talk, what all news channels we see, what all serials we see, movies we see, books we read, company of people we keep, this all comprise of the information part, and that is also one of the factors that decides what kind of thoughts we are creating. I hope you all have heard the quotation. We are a result of 5 people we spend our time with, maximum time with. We become average of 5 people. कि हम जितने भी लोगों के साथ रहते हैं या जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जो भी चीज प्रिडोमिनेंटली करते हैं, हम उन 5 चीजों का एवरेज बन जाते हैं एज अ पर्सनालिटी. That affects us so much. I hope you all have heard that. So that is where information comes into play. Then the past experiences, you all were right. And one is belief systems.
So information is like, if we want to be a positive thinker, then we have to consciously avoid negative input. अगर आपको पता है कि आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है, उसमें वायलेंस हो सकता है, उसमें कोई एक्सट्रीमली नेगेटिव सैडनिंग न्यूज हो सकती है, और आपको ऑलरेडी पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, kindly avoid listening or reading to that, because it is not going to help you. It is going to create those negative neuropeptides, those negative cycle. Try and take positive information. अब इस कोविड के टाइम पे हम क्या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? हम वी आर थिंकिंग हाउ टू थिंक, दिस इज अ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन. If we talk with your like-minded people about what all you can do is a positive information, you can do webinars, you can learn, you can read books. आप घर का काम कर सकते हो, आप स्किल्स सीख सकते हो, आप कुकिंग सीख सकते हो, आपने जो नहीं किया वो कर सकते हो. ये सारी चीजें करना इज इंफॉर्मेशन. नई नई चीजें करना, नई नई चीज. लेकिन अगर आप ये सब ना करके आप पूरे दिन न्यूज चैनल के सामने बैठे रहो ये सोच के कि मैं वही तो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है पता तो होना चाहिए, बट अगर आप 90% टाइम वही करोगे, देन इफ यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू थिंक पॉजिटिव, my dear friend, that's not going to happen, because the raw material in your factory has gone negative and product is going to be negative. रॉ मटेरियल ही नेगेटिव है, एंड प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता. पास्ट एक्सपीरियंसेस ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा डीपली इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं. खासकर हमारा बचपन जो 6 साल तक, फर्स्ट 6 years ऑफ आवर लाइव्स आर द मोस्ट क्रूशियल years इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो उसने एक पूरी प्रोग्रामिंग बना दिया होता है. उन 6 सालों में हमारी पूरी लाइफ की प्रोग्रामिंग बन चुकी होता है, हमारे खुद के बारे में माइंडसेट बन चुका होता है कि मैं कैसी हूँ. अगर फर्स्ट 6 years में हमारा सेल्फ एस्टीम लो है तो हमारा पूरा लाइफ सेल्फ एस्टीम लो रहता है, अनलेस ऑब्वियसली वी स्टॉप एंड वर्क ऑन इट. काम करके मेहनत करके कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन अगर आप पैसिवली रहेंगे तो फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा. और ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है इसके लिए मेडिटेशन काम करता है, क्योंकि मेडिटेशन डायरेक्ट सबकॉन्शियस हीलिंग करता है. आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग को डायरेक्टली कॉन्शियस माइंड से करने का कोई और तरीका नहीं. 2-3 चीजें ही हैं जो आपके सबकॉन्शियस को इफेक्ट करती है. वन ऑफ देम इज मेडिटेशन एंड वन ऑफ देम इज एफर्मेशंस. एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने का जो बेस्ट टाइम बोलते हैं सुबह उठते ही या रात को सोने से जस्ट पहले. ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम दिन भर कॉन्शियस रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, वो उसका सोने का टाइम है. और जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के जागने का टाइम है. लेकिन जो सोने और जागने के बीच का जो जंक्शनल पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट व्हेन आवर सबकॉन्शियस इज गेटिंग अवेक, और उस टाइम पे हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो इसलिए सोते वक्त जो हम सोच रहे हैं और सुबह उठते ही जो हम सोच रहे हैं, ये 2 टाइम के थॉट्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसलिए कहते हैं कभी भी सोते वक्त नेगेटिव सोच के नहीं सोना चाहिए, हमेशा रिजॉल्व करके सोना चाहिए, या डायरी लिख के सोना चाहिए, या रिफ्लेक्ट करके अपना पूरा दिन को इंट्रोस्पेक्ट करके सोना चाहिए. सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रात भर नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता रहेगा. हम तो सो गए लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस नेगेटिविटी को चर्न करता रहेगा. और जब आप सुबह उठोगे तो आपका माइंड एकदम ड्रेन्ड फील होगा, क्योंकि आपको लगेगा मैं तो सो रहा था, लेकिन आप तो सो रहे थे, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो रो रहा था. आपने जो पूरे दिन बर्बादी मचाई, उस बर्बादी को रात भर सबकॉन्शियस माइंड भी बर्बादी मचा रहा था. सो इट डजंट हेल्प. सो इसीलिए बोलते हैं कि रात को सोते वक्त एक अच्छी सी बुक रीड करके सो. टीवी, वायलेंस, न्यूज, इन सबको रात को अवॉइड करना चाहिए. इन्हीं सब चीजों को सुबह उठते भी अवॉइड करना चाहिए. फोन उठते ही जो हम फोन हाथ में ले लेते हैं, उठते ही हमें सबसे पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस करना चाहिए. इन सब पे हम बाद में कभी ऐसे ही रैंडम सेशंस लेंगे. Then comes belief system. Belief system change करना बहुत आसान नहीं है. It's a very long process. It's just like आपके फैमिली के belief system, आपके कल्चर के belief system, हमारे कंट्री के belief system. मतलब हर जगह का एक belief system होता है, हमारे घर का एक belief system होता है. अगर हमारे घर में ये मानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाना गलत है, अब कोई इंसान आ गया जो नॉन वेज खाता है, तो हमारे घर वाले सब लोग उसको नेगेटिव सोचेंगे. या हमारे घर वाले सोचते हैं कि अगर व्रत करना जरूरी है तो जो व्रत नहीं करता उसको जज करेंगे. या हमारे कल्चर में है कि डिवोर्स इज बैड, तो जिस भी इंसान का डिवोर्स हो गया हमारे कल्चरल बिलीफ की वजह से, हमारी मम्मियाँ, मामियाँ, चाचियाँ, नानियाँ, दादा, चाचा, सब लोग उस इंसान को गलत मानेंगे जो इंसान का डिवोर्स हो रखा है. तो इस तरह की कंडीशनिंग होती है, कल्चरल कंडीशनिंग या बिलीफ सिस्टम. इनको चेंज करना आसान नहीं. और बहुत सारे लोग जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं उसके पीछे ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम है. अब हम अगर किसी चीज को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें जाके चेक करना होगा कि मैं कंटिन्यूअसली इस चीज को लेकर नेगेटिव सोच रही हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है. तो वी हैव टू गो एंड एसेस आवर बिलीफ सिस्टम. ये बहुत आसान नहीं है. जो लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं या थेरेपीज लेते हैं, उन लोगों के साथ में जो काउंसलर मिलकर काम करते हैं, दे एक्चुअली ट्राई एंड फाइंड आउट योर बिलीफ सिस्टम एंड दे वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम. इसीलिए थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में थेरेपी को लेकर लोग ओपन नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली हम मेंटल हेल्थ को लेकर भी ओपन नहीं है. बट यस, बिलीफ सिस्टम पे काम किया जा सकता है, बट टेक्स
quite some time. What is the most easy to do and doable thing is information, to control the information. इसीलिए start reading good books and start doing good stuff. तो बिलीफ सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिया. बहुत लोग सोचते हैं टेंशन नेचुरल है. अब जिसने मान ही लिया कि टेंशन नेचुरल है, वो टेंशन फ्री रहने के लिए एफर्ट क्यों करेगा? वो करेगा ही नहीं. आप उसको बोलो भैया तुम बहुत टेंशन में रहते हो, बोलते हाँ सभी टेंशन में रहते हैं. एंगर नेसेसरी, कुछ लोग मानते हैं कि एंगर नेसेसरी है, वो हर काम गुस्से से ही कराना चाहेंगे. आप उनको बोलो भैया घर में हार्मनी क्रिएट करो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, मानेंगे ही नहीं अगर उन्होंने मान रखा है कि एंगर नेसेसरी है. सो देयर आर फ्यू बिलीफ सिस्टम, हैप्पीनेस इज कंडीशनल. फ्यू पीपल थिंक मैं तो खुश रह ही नहीं सकता जब तक मेरे पास मेरे अपना घर ना हो, मेरी गाड़ी ना हो, मेरे बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक तो मैं खुश रह ही नहीं सकती. अब अगर किसी इंसान ने मान ही लिया कि आपने मतलब हैप्पीनेस को कंडीशन पे डाल दिया कि भाई 10 साल बाद ही मैं खुश होंगी, तो 10 साल तक आप रोते ही रहोगे. आप हर इंसान को ये बोलते रहो कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरे पास तो ना घर है ना गाड़ी है. तो ये अजीब तरह की कंडीशनिंग होती है. या बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन में तो हम पॉजिटिव कैसे सोच. ये भी एक तरह का बिलीफ सिस्टम है. आप किसी भी सिचुएशन में आप एक स्ट्रॉन्गर थॉट क्रिएट कर सकते हो. ये हर वक्त हमारे पास एक चॉइस होती है. तो और ये पावर ऑफ चॉइस उतनी ही पावरफुल है जैसे कि हम पूरे दिन अपने कपड़े चूज कर सकते हैं कि आज मुझे क्या पहनना है, आज मुझे क्या मेकअप करना है. उस तरह से हम ये हैबिट को कल्टीवेट कर सकते हैं कि आज मुझे कैसा सोचना है. हाउ डू आई वांट, आज मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं अबंडेंस क्रिएट करूंगा, आज मैं रिएक्ट नहीं करूंगा. हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने थॉट्स के साथ जो हम करते नहीं. अब एनी क्वेश्चन बाय टिल नाउ? Is there any genes transformation will be there in the thought process from ancestor? होता है. डिप्रेशन भी जेनेटिक होता है और ये एक पर्टिकुलर थॉट पैटर्न प्लस क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हम बोल रहे हैं ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमारा जो इसको एक वर्ड में अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं संस्कार. कि आपका जो पुराना संस्कार है, अब संस्कार अकेला इस जन्म का नहीं होता है. संस्कार आपकी जेनेटिक जो प्रीडोमिनेंस होते हैं वो भी आपके संस्कार के अंदर ही आते हैं. आपके अब बहुत लोग हम रीबर्थ को मानते नहीं है, बट हमारा जो अगर हम पुराने जन्म में जिस तरह का हमारा पर्सनैलिटी रहता है दैट इज ऑल्सो कैरिड फॉरवर्ड. और हमारी स्कूलिंग से हमारा फर्क पड़ता है, हमारे बचपन में हमारे घर के माहौल से फर्क पड़ता है, ये हर चीज का फर्क पड़ता है. बट यस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज ऑल्सो देयर बट इट कैन बी चेंज. आजकल नया रिसर्च आ गया है, एपिजेनेटिक्स बोलते हैं उसको. एपिजेनेटिक्स की स्टडी में उन्होंने पाया है कि पॉजिटिविटी से सब कुछ चेंज कर सकता है. इवन जो जीन्स का जो जीन्स में सपोज आपके कोडेड है कि भाई इस इंसान को, फलाने इंसान को कैंसर हो सकता है. अब अगर आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीते हैं तो उस कैंसर को अनलॉक, उस जीन को आपका वो जीन लॉक्ड ही रह जाएगा, आपका वो जीन अनलॉक ही नहीं होगा. बहुत सारे डिजीजेस आपकी डिले हो सकते हैं, आपकी एज, आपका एंटी एजिंग इफेक्ट आ सकता है. उसका जो साइंटिफिक बेसिस है, अब मैं अगर उसमें जाऊंगी तो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट आई विल कवर दैट इन सम ऑफ द, वी विल टॉक अबाउट जीन्स एंड जीनोमिक्स एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे थॉट्स कैसे हमारे जेनेटिक्स तक जाके हमारे डिजीजेस को रोक सकते हैं. हमारी अगर हेरिडिटी में कोई डिजीज है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, और अगर हम एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम इन सब चीजों से बच सके तो हम बच सकते हैं. मैं ये नहीं कह सकती कि रिजल्ट किसका कैसा रहेगा, बट मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती हूँ, ब्रह्मा कुमारीज की जितने भी स्पिरिचुअल हेड्स हैं वो सारे 100 इयर्स प्लस होके मरे. और ऐसा और भी ऑर्गेनाइजेशंस में होता होगा, सिंस आई एम ओनली एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारी एंड इवन 100 इयर्स तक उन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाली. हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी दैट दे कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस, कि उनके अंदर इतना एंटी एज है. अभी हमारे घर में आप 60 साल के लोगों को देख लो, 60 साल के लोग ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं 70 साल वाले जैसे जिंदगी खत्म हो, दे विल बी लिव लाइक अ बेडेड लाइफ. सो इट इज ऑल द पर्सपेक्टिव. सो मूविंग ऑन, कितने तरह के थॉट्स होते हैं. अब यहाँ पे अब हम सिर्फ थॉट्स की बात करेंगे कि थॉट्स कितने तरह के होते हैं, जिसमें कि जो ग्रीन वाला दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव थॉट्स हम सिर्फ इतना ही करते हैं. तो पॉजिटिव थॉट्स हमारा 1% है और 3 to 4% हम नेसेसरी थॉट्स करते हैं. जो नेसेसरी थॉट्स का मतलब क्या है? आज खाना क्या बनेगा, आज मेरा ऑफिस कितने बजे है, मुझे कैसे जाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, ये सारे नेसेसरी थॉट्स है. ये तो करने ही है, इनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते.
15% हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमारे नेगेटिव थॉट्स, ये बहुत पावरफुल थॉट्स होते हैं, लेकिन इनका परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं है। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है वेस्ट थॉट्स। ये वेस्ट थॉट्स का मतलब है कि आपकी माइंड की फैक्ट्री में जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, इसमें से जो माइंड की फैक्ट्री में जो यूजफुल चीज है, जो बाई प्रोडक्ट है, जो हमें चाहिए, वो 1% है, और जो 80% है वो डस्टबिन में जाने वाली चीज है। अब आप किसी फैक्ट्री में से अगर 80% जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसको सीधे आप डस्टबिन में डालोगे, तो व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट्री इज दैट? सो अगर हम थॉट मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे और अगर हम थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करके पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम 80% वेस्ट में रहते हैं। इन्हीं 4 कैटेगरीज को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो अगर पॉजिटिव में भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एलिवेटेड। एलिवेटेड इज लाइक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स कर पाते हैं, या जैसे सदगुरु की बातें सुन लो, या किसी की भी जो बहुत ज्यादा लीडर्स होते हैं, जो एनर्जेटिक होते हैं, ये एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं। वो थॉट्स इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो हमारे बॉडी में एक्चुअली में पॉजिटिव हार्मोन्स का इंस्टेंट जनरेट करते हैं। फिर एक होता है राइट थॉट्स। कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं सोचते, बट दे आर प्रैक्टिसिंग कि भाई जो चीज जैसी है वैसी देखो, बढ़ाओ मत, एग्जैजरेट मत करो, अंडर वो भी मत करो, अंडरमाइन भी मत करो, एग्जैजरेट भी मत करो। तो एक तरीके का थॉट्स होता है राइट थॉट। इसका हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हैबिट होता है हर चीज को बढ़ा चढ़ा के, या किसी की पॉजिटिविटी को तो हम इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव बातों को पकड़ पकड़ के बढ़ा चढ़ा के करने की हैबिट होती है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। ये किसी का पर्सनली मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसको हमें सीखना होगा। नेसेसरी थॉट्स हमने देख लिया। बेस्ट थॉट्स जो 80% है वो है या तो पास्ट का या फिर फ्यूचर का। और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये हमें पता ही है, ये सारे आजकल कोविड में सबसे ज्यादा इसी का इम्पैक्ट है। और जो टॉक्सिक थॉट्स होते हैं वो इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो नेगेटिव टॉक्सिन्स क्रिएट कर लेगा आपकी बॉडी में। रिवेंज, जेलेसी, इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि आपकी बॉडी में डिजीजेस भी क्रिएट करता है। तो जैसे जेलेसी एक बहुत टॉक्सिक इमोशन है, ये वो जो नेगेटिव हार्मोन्स में बता रही थी, इंस्टेंटली ये हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होगा। और जितना भी स्ट्रेस और इमोशनल सफरिंग हम करते हैं, वो सिचुएशन से ज्यादा हम कैसा सोच रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में, उससे आता है। और ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव, अनरियलिस्टिक, डिस्टॉर्टेड होते हैं अगर हम वॉच ना करें तो। और जैसे हम बाहर ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत होती है, ऐसे थॉट्स के लिए भी ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत होती है। मैंने एक कोर्स किया था मैग्निफिसेंट मॉर्निंग, उसमें हमारी जो कोच है अनामिका, उसने हमें एक चीज सिखाई कि दिन में कई बार आप बाहर जाओ, बैल्कनी में खड़े हो और बाहर पेड़ों को देखो, आसमान को देखो, नेचर को देखो, एंड जस्ट सी एंड ट्राई एंड प्रैक्टिस क्लीन स्लेट माइंड। क्लीन स्लेट माइंड का मतलब आप उन चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करो, आप सोचो मत। ट्राई एंड नॉट क्रिएट एनी थॉट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। पेड़ हरा है, बस उसको आप देख रहे हो, चिड़िया देख रहे हो, फूल देख रहे हो, पत्ते देख रहे हो। दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रैफिक कंट्रोल, दैट यू आर ट्राइंग टू। आपका माइंड सोच सोच के इतना थक जाता है कि उसको भी थोड़े ब्रेक की जरूरत है। एंड आई थिंक दैट गिव्स अ डिसेंट ब्रेक। सोना कभी भी ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि सोते वक्त ब्रेन रिलैक्स करे, तो उसके लिए आपको सोने से पहले अपना स्लीपिंग रिचुअल बनाना पड़ेगा, नाइट टाइम रिचुअल बनाना पड़ेगा, जिसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं नाइट टाइम रिचुअल के, जिसमें कि बुक रीडिंग, एफर्मेशन, रिफ्लेक्शन, ये सब चीजें होती है, तो हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड रह सकता है सोते टाइम। अब जैसे डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब है कि कोई चीज जो जैसी है उसको वैसे ना देख के मिरर्स के थ्रू देखना। तो अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन भी होगी तो वो हम उसको एग्जैजरेट करके कैसे देखते हैं, तो कई तरह के थॉट डिस्टॉर्शन। आइडियली हमें चीजों को वैसे देखना चाहिए जैसी वो है, लेकिन हम ज्यादातर मैग्नीफाइंग मिरर से देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखते हैं, और हम उस सिचुएशन से नहीं थकते। हम उस सिचुएशन के बारे में, जैसे कोई काम करना है, उस काम करके नहीं थकेंगे, उस काम के बारे में सोच सोच के थक जाएंगे। आई गिव यू वन एग्जांपल। one of someone near to me called me 2 days back, and immediately started crying that some of their relative got COVID, and they started crying badly. मतलब रोना शुरू कि बस मैं उस इंसान को खोना नहीं चाहती। So the moment you came to know that the person had COVID, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि क्या स्टेटस है, डॉक्टर को कंसल्ट किया कि नहीं किया, मेडिसिन लिया कि नहीं लिया, ऑक्सीजन लेवल ठीक है कि नहीं, अगर बेड की जरूरत है तो बेड अरेंज करने की तुरंत से आप तैयारी करो। इन सब चीजों को बाईपास करके उस इंसान ने रोना स्टार्ट कर दिया कि अब ये इंसान मर जाएगा और मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। सो दैट इज काइंड ऑफ अ
मैग्नीफाइंग, दिस इज हाउ सम पीपल बिकम सो नेगेटिव दैट दे स्टार्ट मैग्नीफाइंग द सिचुएशन जो हुआ भी नहीं। एंड ऐसा करने का नुकसान ये है कि हमारी ही कैपेसिटी खत्म हो जाती है। कुछ लोगों का ऑल ऑन नन अप्रोच है कि मतलब 99.99% मार्क्स नहीं आए तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। सच पेरेंट्स और सच चिल्ड्रन जिनके दिमाग में इस तरह की थिंकिंग होती है, वही लोग फिर सुसाइड करते हैं कि अगर मतलब अगर मैं मतलब वो इतना ज्यादा रिजिड हो जाते हैं लाइफ को लेके, ऑल और नन अप्रोच। जबकि लाइफ ऐसा नहीं है, लाइफ इज शेड्स ऑफ ग्रे। सम पीपल आर हैविंग अ हैबिट ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन। वो इतना जल्दी कंक्लूजन को जंप कर जाते हैं दूसरों को जज करने में कि वो उस अगले इंसान को मिस ही कर जाते हैं। एक डायलॉग है या कोटेशन है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान से मिलते ही, इनफैक्ट बात करने से पहले ही हम जज कर लेते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा तेज लग रहा है, ये बड़ी चालाक लग रही है। सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ जजिंग। वो जज किए बिना रह ही नहीं सकते, उनको लेबल लगाना ही है, टप्पा लगाना ही है। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। हर इंसान बदलता है। मैं आज से 5 साल पहले जैसी थी मैं आज वैसी नहीं हूँ। मैं 2 साल पहले जैसी थी मैं आज वैसी नहीं हूँ। मैं शायद 6 महीने पहले जैसी थी मैं आज वैसी नहीं हूँ। हर इंसान हर वक्त बदलता है, ग्रो करता है। यस अभिमन्यु, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Hypothetical question: army men know his enemy and he hates them. Actually they don't do things according to hate. They take it as their dharma. They take it as a service to their nation. And more than hate or revenge, they have, उनके अंदर एक जज्बा अपने देश को सर्व करने का इतना ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है कि उनके अंदर वो इमोशन प्रिडोमिनेट करता है। एंड यस, आर्मी में जो सोल्जर्स है जो बॉर्डर पे है, दे सफर अ लॉट। देयर आर सो मेनी सोल्जर्स डूइंग सुसाइड, सो मेनी सोल्जर्स हैविंग मेंटल इलनेसेस, बिकॉज हर कोई, वो पुराने जमाने की बातें थी जब देशभक्ति का जज्बा प्रिडोमिनेट करता था। आजकल बिकॉज ऑफ आई थिंक सिस्टम, आर्मी लोगों की फैमिली की उतनी केयर नहीं होती, या इतनी जो भी वॉर सिचुएशन होती है, दीज पीपल एक्चुअली सफर अ लॉट। हमारे बीच में एक बीएसएफ से एक मिस्टर सुरेंद्र है हमारे इसमें क्लब में, और वो मुझे कई बार बताते हैं उनके जब भी आर्मी में जवान, न्यूली मैरिड, ओल्ड मैरिड, व्हाटएवर, हर तरह के जवान बस सुसाइड करना चाहते हैं। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दीस पीपल फेस बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। But yes, I'll try to go into detail of this question. Thanks for asking. Some people have always been mentally, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे भाई, सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता है, सबके साथ सब कुछ होता है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन भी बहुत किसी लोगों को मतलब मजबूर कर देता है हर वक्त नेगेटिव सोचने। कुछ लोग जस्टिफाई करते रहते हैं, कुछ लोग लेबल करते रहते हैं। अब आपने किसी इंसान को लेबल ही कर दिया कि ये तो खराब है, अब आपने किसी दूसरे इंसान को लेबल कर दिया, तो आप कहाँ से उस दूसरे इंसान के बारे में सोचो? So some people have a fly mentality. Fly mentality माने मक्खी देखा है ना, जहाँ पर भी गंदगी होती है वहाँ मक्खी भिनभिनाने लगती है immediately. So some people have that fly mentality कि वो जितना भी उनको दे दो सिचुएशन, वो उसमें से जो सबसे नेगेटिव वाला होगा ना उसको चूज करके उसको मंच करना शुरू करेंगे, उसी को रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे. Some people have a habit of nullifying good. आप कितना भी अच्छा कर लो, वो आपके अच्छे को बिल्कुल जीरो कर देंगे एक सेकंड में. एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड नेगेटिव कंसंट्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस पे बेस्ड है कि हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है वो सोचने की जगह हम ये सोचते हैं हमें क्या नहीं करना है. मुझे ना गुस्सा नहीं करना है, तो हम अपना कंसंट्रेशन एक नेगेटिव चीज पे कर रहे हैं. अल्टीमेटली हम गुस्सा बोल रहे हैं rather than ये बोलने के कि मुझे पीसफुल रहना है, हम बोल रहे हैं मुझे गुस्सा नहीं करना. तो जो नहीं जिस सेंटेंस में आ रहा है ना उसको वॉच करिए कि हमें मतलब एक वो है ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. अगर हम बार बार ही बोलेंगे मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तो अभी भी हम अपनी एनर्जी गुस्से पे डाल रहे हैं, हमारी एनर्जी पीस पे नहीं गई है. तो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल डू एंड वी हैव टू वॉच. तो जैसे अगर आपको फिट होना है, पतला होना है, अब अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हैं आई डोंट वांट टू बी फैट, तो आपका माइंड जो विजुअलाइज कर रहा है वो आपको फैट विजुअलाइज कर रहा है. आपका सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइजेशन पे काम करता है. ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है. आज के टॉपिक में से 6-7 टॉपिक्स निकल गए फ्यूचर के लिए. तो अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, या मुझे फेल नहीं होना है, या मुझे लेट नहीं होना है. आप अगर पूरे दिन ये बोलेंगे नहीं मैं तो अब सुधर जाऊंगी, मुझे लेट नहीं होना, मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना, तो आपका सारा एनर्जी अभी भी लेट पे है. आप ये बोलो कि आई एम पंक्चुअल. सो आप ये बोलो कि आई वांट टू बी भी नहीं बोलना होता. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तो आई एम करके बोलना होता है.
So think what you want, don't think what you don't want. तो ये भी एक थॉट्स का एक बहुत एक अलग डायमेंशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एक बुक है द सीक्रेट रोंडा ब्रांड की, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, you can read that book. It's a beautiful book. And so negative versus positive thinking is just like this. हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कंकर और मोती सबके लिए एक साथ पड़े हुए हैं. तो ये इस तरह का है कि जो कौवा मेंटालिटी होगा वो जाके कंकर उठाएगा, जो हंस मेंटालिटी होगा वो जाके मोती उठाएगा, मोती को चुगेगा. सो वी हैव टू बी विजिलेंट कि हम किस तरह के इंसान बनते जा रहे हैं, हमें किस तरह का बनना है. वही उसी क्लास को कुछ लोग हाफ फुल देखते हैं, कुछ लोग हाफ एम्प्टी देखते हैं. इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर माइंडसेट, अवर मतलब कुछ लोग उसी में खुश हैं, कुछ लोग उसी में हंग्री है. इसीलिए एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये क्यों जरूरी है कि अगर हम अच्छे नॉर्मल थॉट्स क्रिएट करते हैं और हमारा माइंड स्टिल रहता है, तो हम हर सिचुएशन को क्लियरली देख पाते हैं, क्लियर डिसीजंस कर पाते हैं, क्लियर थिंकिंग कर पाते हैं. ये बहुत जरूरी है. स्टिल माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेगेटिव थॉट्स कभी भी आपके माइंड को स्टिल नहीं रहने दे. सो दैट्स द एंड ऑफ टॉक. टेक होम पॉइंट्स, वॉच योर सेल्फ टॉक. आप आई एम के बाद क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉच योर फीलिंग्स. अगर आपको अपने थॉट्स को समझ में नहीं आ रहा, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव सोच रहा हूँ, तो अपने फीलिंग्स को वॉच करो. अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, देन गो बैक टू कि कहाँ से आपने नेगेटिव फीलिंग करना स्टार्ट किया था, और उस थॉट को एनालाइज करने की कोशिश करो कि कहाँ से आया. देन वॉच योर कंपनी. वी बिकम एवरेज ऑफ 5 पीपल जिनके साथ हम रहते हैं, या जो बुक्स पढ़ते हैं, या जो इन्फॉर्मेशन हम ले जाते हैं अपने अंदर. सो वॉच योर कंपनी, वॉच योर इन्फॉर्मेशन जो आप अपने साथ अपने अंदर ले जा रहे हैं. शार्पन योर इंटेलेक्ट. पर्सनल ग्रोथ पे काम करें. और पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती है. हम जब पैदा होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, फिजिकली हम ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं, लेकिन पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होता है. पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें काम करना होता है. इट डजंट हैपन ऑटोमेटिक. सो दैट्स एंड ऑफ टुडेज टॉक. थैंक यू. वी कैन चेंज आवर चॉइसेस. अगर उस दौरान हमने कुछ उन थॉट्स की वजह से अगर कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, कुछ भी इंसिडेंट्स, पास्ट इंसिडेंट्स हमारे लाइफ को अफेक्ट करता रहेगा जब तक हम उसके डिटेल में जाके वो लेसन उसमें से नहीं निकालेंगे. कहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई सफरिंग बार बार आ रही है तो वो इसलिए आती है कि आपने उससे जो लेसन सीखना था वो नहीं सीखा. किसी भी सिचुएशन में हमारे लिए कौन सा लेसन है, और आप हर सिचुएशन को एनालाइज करें और दूसरों की गलती ना ढूंढे, अपनी गलती ढूंढे कि मैं क्या बेटर कर सकता था उस सिचुएशन को चेंज करने. इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. फिर आप पास्ट का किसी भी इंसिडेंट्स को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड यू कैन लर्न. यू एटलीस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ कि ये जो पास्ट में हुआ था इसमें ये गलत था, मैंने ये गलत किया था, और मैं ये अगर दोबारा ये सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा या नहीं करूंगा. दैट इज हाउ यू हैव टू क्लोज ऑल द फाइल्स ऑफ द पास्ट. अगर पास्ट के फाइल्स ओपन रखे हुए हैं तो वो हमारे माइंड को इफेक्ट करता रहे, वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करता रहे. Lata ma'am, thank you ma'am. Thank you, एक Kirti. मिनट लगा. It was really awesome. I never expected it to be going in this way. I want to listen to you more and more. I'm so proud and so happy. Really, I don't know. I have no words to say much. Thank you ma'am. Thank you. Yeah, I'll be always following you in this kind of chats. Thank you ma'am. Thank you for attending. Mr. Naidu. Yeah, thank you. Yeah. So it is very, very good. Actually, I have not expected this much. Thank you. It is very thought-provoking. It is very thought-provoking. Very good. Asin is speaking, right? Yes, Asin Okay. here. Just in summary, I really appreciate the information that you shared. It seems like we have the control, we have the power, and the ways to change our lives in terms of what we think, feel, and everything. So yes, I will be more vigilant, more mindful about how my feelings, emotions, and perception towards life and experience changes, and which hopefully does help me achieve what I want to achieve. Raman, would you like to speak? Thank you so much, Dr. Kirti. I think all the information which you have provided was very good and enlightening. Actually, it is changing my mind how we can control our thoughts and how we can reduce our negative thoughts and improve our positive thoughts. And affirmations are very, very important. It can be used in the night as well as in the morning. That can actually change the life.
I try to adapt these things in my day-to-day life. Thank you so much for arranging Actually, this the whole session. purpose of today's talk was one, that we all realize the importance of not thinking negative and thinking positive. अगर हम सब आज के सेशन से इतना भी ले लेना कि नहीं पॉजिटिव थिंकिंग सीखना है, ये मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, बिकॉज इट्स सच अ वास्ट फील्ड. हम 25-25, 30-30, 40-40 साल से एक पर्टिकुलर तरीके से सोच रहे हैं. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन वन डे, बट दैट डिजायर कैन कम. वो आग बोलते हैं ना चिंगारी के, हाँ भाई चिंगारी लग गई कि भैया अब तो मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, वो उतना काफी है. दैट विल मेक अवर choices different. The session was great. As I mean, I am a fan of Dr. Kirti. Everyone knows that, and since we do it together, so yes, it was a wonderful session again, Dr. Kirti. आप अपने thoughts को आप कैसे सोच रहे हो, बस आप अगर उसके ऊपर प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे वी आर नॉट इवन प्रेजेंट कि हम क्या जो हम सोच रहे हैं इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, हम सिर्फ कंक्लूजन्स निकालने में लगे रहते हैं. दिस इज दैट सेशन जो टाइम एंड अगेन, मतलब मैं तो पीपीटी एंड रिपीट करने वाली हूँ कि जब भी मेरा नेगेटिव फेज में जाऊंगी तब पॉजिटिव में वापस आने के लिए दिस इज अ वेरी गुड टूल फॉर मी. Jagriti, you want to say something? Yes. Actually, this is our favorite topic, my and PPV, because always whenever I'm feeling negative, I always have to listen or lecture like this. And yeah, but it helps me a lot, and it helps, I think it helps everybody, because we have to make ourselves aware that we can break the chain of negativity and negative thoughts, and this we can do only and only by generating positive thoughts and creating positivity around us. या एक्चुअली जैसे अंधेरा है रूम में, अब आप अंधेरे से कितना लड़ सकते हो, आप अंधेरे से नहीं लड़ सकते हो, आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है लाइट का. सो यू डोंट हैव टू फाइट द नेगेटिविटी, यू जस्ट हैव टू फोकस हाउ टू जनरेट द लाइट, द पॉजिटिव, एंड देन द अंधेरा ऑटोमेटिकली गोज अवे. But andhera is going to remain, negativity is always going to remain, the world is always going to give us such challenges. And like you said, where energy, where your attention goes, energy flows, and where energy flows, that area grows. तो अगर आप नेगेटिव चीज की तरफ ध्यान दोगे तो नेगेटिविटी आएगी ही, नेगेटिव चीजें नेगेटिवली ग्रो करेंगी.